Hello, everyone, and welcome to another podcast by the iScale. And this podcast is very special for me because we are having Abhineet Singh, which is one of our amazing learner here at the iScale. So, Abhineet, a very warm welcome to you on today's podcast. Let me inform everyone, Abhineet is basically that hardworking professional I have ever seen in my career who is currently working at IT services at Bromley Healthcare, and he belongs from, I think, United Kingdom, London. So Abhineet, very warm welcome to you for today's session, and we just want you to introduce yourself so that everybody who are going to listen this podcast will know better about you. Oh, thanks for having me. Um, बहुत बहुत शुक्रिया. Uh, I'm thinking कि मैं कहाँ से start करूँ. Starting from my education. Yeah, I mean, my name is Abhineet Singh, or I belong from a very. My roots are basically belongs from a very small city in UP. There is a city called Badaयूं, which is near to Bareilly. People might know in India, Bareilly is 45 kilometers Bareilly se. That's where I born, and then my study started. I have done BIT from Kanpur, where my maternals, Nani Nana, because it was a small town, I didn't have anything to study about. It was just my primary education. और फिर मैं कानपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन आईटी ग्रेजुएशन किया एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन 5th of March 2005. मुझे याद है मेरा जिस दिन लास्ट एग्जाम था उसी दिन इंटरव्यूज चल रहे थे नेक्स्ट बिल्डिंग में और मैं लास्ट एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू देने गया और वो बहुत बुरा इंटरव्यू हुआ and the person HR person who took my interview made me feel I'm the most pathetic person in the entire world. Because, and then he was like, no, I mean, you don't do anything. Why should I hire you and everything? So मुझे लगा कि fine, because मेरा course complete हो गया था. I have to go back to my hometown with my mom and dad. But वहाँ पहुंचा और एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि सेम इंटरव्यू यूर सेलेक्टेड. सो मैंने कोई और इंटरव्यू नहीं दिया. मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया उसके बाद और देन आई गॉट सेलेक्टेड आफ्टर 2 weeks. आई हैड टू जॉइन इन गुड़गांव इफ आई एम नॉट रॉन्ग. that was specifically for uh, IT service desk team member. Initially they wanted for a NOC, which is Network Operation Center, क्योंकि मैंने BSc IT किया था और वो नेटवर्किंग से ऑनर्स था. So it was first year common. Then I had to decide which domain I want to go. तो वो नेटवर्क इंजीनियरिंग था और वहाँ मैंने NIT ज्वाइन किया. Started as a NOC agent. उसके बाद I worked 16 years and 10 months in NIT Technologies. अम, उस 16 साल 10 महीनों में मैंने 4 बार रिजाइन किया. चारों बार मुझे उन्होंने रिटेन किया और और मुझे याद है कि क्योंकि एनआईटी टेक्नोलॉजी इज नाउ कोफोर्ज बाय द वे. They have a big campus there in Yamuna Expressway, if I'm not wrong. So, uh, because वो MSP है, तो you get an opportunity to work with different customers. So, first I worked for a customer for US-based ISP. तब हम उनके नॉक में काम करते थे. उसके बाद I decided to move to another project. और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट था which called Caesar Palace. I don't know लोगों को पता हो या नहीं, but Caesar Palace is one of the biggest casinos in Vegas, Las Vegas. तो हम वहाँ पर IT सपोर्ट सर्विस डेस्क टीम वहाँ से मैंने ज्वाइन किया. जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, फिर मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है. सो इन मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल थी उसका उनको सुपरवाइजर चाहिए था. सो आई वाज गोइंग वन स्टेप अहेड फ्रॉम माय डिफरेंट प्रीवियस प्रोजेक्ट.
उसके बाद फिर सीजर पैलेस में मैंने करीबन 4-5 साल काम किया. उसके बाद दे गॉट वन मोर प्रोजेक्ट. और लास्ट जब मैंने रिजाइन किया था, इट वाज 2000, नहीं, सेकंड लास्ट रिजाइन किया था 2014 January. So they, but during this time when I was working for Vegas, they applied for my L1 visa for US, which got rejected. To be very, very frank, I don't know why. Then they applied my H1B visa, which got, actually I got it. My wife got it, but जिसको मैं replace कर रहा था, he was retained. He was a notice, then he retained, तो वो पैसा बेकार हो गया उनका. Then 2014 में I resigned again because I got a good offer from CSE. बट दे सेड नो, हमारे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि यूके में है. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इनिशियली 2 years के लिए आपको जाना है. Then again I retained, uh, and I came May 2016. I came in. Initial visa was, or the project was only for 2 years. I had There is Lloyd's of London insurance market, which is the biggest in Europe. They got a very good project, to be frank. अगर और उसमें आपको अगर बिजनेस करना है तो एवरी कंपनी हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट्स. लाइक जैसे इंडिया में अगर बैंकिंग स्टार्ट करनी है तो आप रिजर्व बैंक इंडिया को आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है. सेम ऐसे ही होता है. और अगर मैं बताऊं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ह्यूज है लॉइड्स में काम करना किसी कंपनी के लिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब यूएस में था, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो लॉयड्स ऑफ लंदन ने इंश्योर किया था. वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया था. वो किसी कंपनी की, किसी कंट्री की सबमरीन्स को इंश्योरेंस, बहुत छोटे इंश्योरेंस नहीं करते हैं, वो बिग इंश्योरेंस. इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड आई हैड टू कम हियर टू सेट अप देयर एंड यूजर कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट. सो मेरा प्रोफाइल उस समय सर्विस डेस्क को मैनेज करना था. आधी टीम इंडिया में थी और आधी यूके में थी, तो इट्स लाइक 60-40. फिर 2 साल हुए, फिर मुझे लगा जाना है. आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ रुकूंगा इतना टाइम. फिर 1 साल और बढ़ा, फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ी, फिर टीम बढ़ी, फिर 2 टीम्स, 3 टीम्स, एंड देन 5 years के बाद वीजा आपका एक्सटेंड नहीं होता. आईसीटी टियर 2 वीजा, इट्स लाइक L1 वीजा इन यूएस. Then my wife started getting settling here because she was a teacher there in India में. um, but they start getting settled. So my wife said, मुझे masters करना है यहाँ से. So she took an admission. I became her dependent. So that, because आप जिस वीजा पे इंडिया से आते हो, आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते. Because I became her switch, to I depend. It's better to depend on your wife rather than the company then. So I switched the visa. I switched the visa. Then I put my profile on the market, and then uske baad there was a company called Mountain Warehouse. Mountain Warehouse. It's a retail chain. उनके IT support department पे I got an opportunity to work as an IT service desk manager. UK में 2 location में मेरे को टीम को मैनेज करना था. सो आई वर्क फॉर 20 months. बट मैंने सोचा था कि 16 साल तो दिए ना कंपनी को, अब नहीं देने. तो 20 months, लेस देन 2 years, I just tried again, और मुझे NHS में रोल मिला, which was very very prestigious after COVID. और NHS में काम करना, you feel proud. It's not only money, it's about you are supporting technically to doctors, radiologists, True. nurses, which is important. So Yes. अब मैं वहाँ पर हूँ, और it's been, I think, this 23rd August को मेरे को 2 साल पूरे हो गए. What an amazing Sorry, it was journey. long, but that's what it is actually. But it is your experience and it is your amazing journey that you are having, like after giving 4 time resignation, then retention, and it's an amazing journey you are having, Abhineet. And the smile on your face shows the satisfaction, and it's all the result of your hard work, because you are the one I've seen in the lectures as well, in the classes as well. I've taken the feedback from the people from the iScale also, and every time I got the feedback that the most calm, most patient, like the most amazing learner I'm having on the platform. So that shows your hard work, that shows your sincerity, and that shows what kind of enthusiasm you're having for your work. So Abhineet, please just let us know about that. Like, you are already doing an amazing job here, then what are the things that you thought, okay, right now, because it's a time for the global, at the global level, it's a time for the change in the
टेक्नोलॉजी रिलेटेड डोमेन, तो कैसे आपने फिर डिसाइड किया कि ओके नाउ इट्स अ टाइम फॉर मी टू स्टार्ट लर्निंग एआई, डेटा साइंस एंड एवरीथिंग? व्हाट कम्स इन योर माइंड? तो वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला चीज है क्यूरियोसिटी। और आई मीन मैं आई बी वेरी ब्लंट एंड ओपन, राइट? मैं यस। बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। यूके में माय सन एंड डॉटर विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। मेरे माँ बाप ने कभी भी, उनके पास रात को खाने को था नहीं था, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मेरे को अच्छी एजुकेशन दी। तो अगर मैं सोचता कि मैंने तो अच्छी जॉब ले ही ली है इंडिया में, और आगे क्या, तो चलता रहता है ऐसे ही। ट्रू। बट एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। तो ये है कि पैदा जरूर गरीब घर में हुए थे, बट माँ बाप को प्राउड कराएंगे कि अ, उन्होंने अपना जो पैसा अपने खर्च के बजाय हमें खर्च किया, वो बेकार नहीं गया। तो नाउ अच्छा लगता है कि जब 10 गोरे मुझे रिपोर्ट करते हैं। आई मीन it feel proud, ट्रू। because I have a team member and I feel like I'm the guardian for them. But you come from that environment where it is hard, it is challenging, or that's how you learn how to fight. तो अब सर्विस डेस्क मैनेजर मैंने करीबन 5-6 टीम्स एज ए सर्विस डेस्क मैनेजर मैंने मैनेज किए हैं। तो सर्विस डेस्क को मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस, जो चीज़ को सोचने के लिए मैं टाइम लगाता था वो मेरे को तुरंत आता है, क्योंकि मेरी अब मसल मेमोरी में आ गया है। यस। तो मुझे लगा कि अब क्या, आगे क्या। ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे एनएचएस में हैं जो कि 15-20 साल से काम कर रहे हैं, सेम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं सोचा है। तो आगे क्या है, सर्विस डेस्क मैनेजर का नेक्स्ट क्या, डिलीवरी मैनेजर, सर्विस मैनेजर। और धीरे धीरे करके पता चला और क्यूरियोसिटी हुई कि सर ऑटोमेशन आ रहा है। अभी तो जो सर्विस डेस्क में पासवर्ड रीसेट होते हैं, तो वो तो ऑटोमेट हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि जिस भी डोमेन में हो आप, आई मीन व्हाट आई हैव लर्न, पीपल आर गेट स्कैर्ड, दे डोंट नीड टू स्कैर्ड, ट्रू। बट दे नीड टू बी कॉशियस। लाइक, क्या इज AI will replace you? AI will not replace you. The person who knows AI will replace you. ट्रू। So it's better to be scared, but in a positive sense. तो अब आपको क्या करना है? I mean, मैं सिर्फ अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा डोमेन है आईटी सर्विस मैनेजमेंट, आईटी सर्विस डिलीवरी। अगर मैं थोड़ा सा जेनरिक आईटी सपोर्ट, तो मेरे को लगता है कि एआई में वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं, आई हैव वर्क विद सर्विस नाउ, आई हैव वर्क विद जीरा, आई हैव वर्क विद, hello, I'm talking about the ticketing softwares, ITSM tools. I have worked with 6 to 7 different modules, and the good opportunity here कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है हेलो ITSM, जो कि सर्विस नाउ का एक तरह का है, बट उसका मैं प्रोडक्ट ओनर भी हूँ अलावा सर्विसेज मैनेजर के। तो आई एम वेयरिंग मल्टीपल हेड्स है। तो उसमें बहुत कुछ हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मेरा जो प्लानिंग है, मेरी प्लानिंग सिर्फ ये है कि सर्विस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एआई काम कर सकता है, जो मेरी प्रोफाइल को मेरे डोमेन में रहते हुए ही, क्या मैं चैटबॉट बना सकता हूं जो कि सेल्फ सर्विस पोर्टल पे कोई जाए और वहां पे डाले पासवर्ड रीसेट, उसको केबीज ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर उसको लगता है नहीं अब एजेंट से बात करनी है तो चला जाए। दिस चेंज इज ऑलरेडी हैपनिंग, सो इट्स नॉट लाइक कि वो 2 साल बाद होगा। शायद पिछले साल तक ऐसा था कि 3 साल बाद चेंज होगा। नहीं, चेंज इज हैपनिंग राइट नाउ। यू नीड टू चेक इफ यू कैन ग्रैब इट और नॉट। तो मेरा फोकस बड़ा लिमिटेड है कि आईटी सर्विस डिलीवरी और आईटी सर्विस मैनेजमेंट में मैं क्या ऐसा सीखूं जो कि मैं इंट्रोड्यूस करूं इन विद इन एआई, जो मेरी प्रोफाइल को आगे ले जाएगा। सैलरी विल गेट इंक्रीज, बिकॉज आई एम ऑन अ लीडरशिप रोल नाउ। बिकॉज मुझे मुझे लोगों को अब मोटिवेट करना है। तो फॉर एग्जांपल, next week I have set next to next week I've set up a meeting with my team
to tell them, to shake them, please wake up, AI is coming. सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या होगी, जो कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट है मैम, वो सबसे पहले चेंज होगा, वो सबसे पहले ऑटोमेट होगा। यस। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो हो सकता है कि 1 साल बाद हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तो जब मैं, टू बी फ्रैंक, आई विल बी वेरी वेरी ओपन विद यू, मैं जब ऑनलाइन गया तो मैंने नितिन निशांत सर की शायद और आपकी कुछ क्लासेस देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आई मीन मुझे, मैं भले ही मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज कम्युनिकेट कर लेता हूँ, बट मैं सीख हिंदी में ही पाता हूँ, दैट इज माय प्रॉब्लम। सो वो जो चीज थी ना मैम, वो मैंने पकड़ी वहां से। और आप जिस तरीके से स्लो उसमें समझाते हो ना, दैट विल लास्ट। अगर किसी को एआई करना है तो उसको पाइथन पढ़ना ही पड़ेगा, उसको बीआई, पावर बीआई करना ही पड़ेगा, उसको एडवांस एक्सेल आनी जरूरी है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ हेलो में, मंथली रिपोर्ट फॉर माई सीटीओ एंड सीईओ, क्योंकि रिपोर्ट्स मैं बनाता हूँ, दे थिंक, मुझे नहीं पता ये सही, दे आर राइट और रॉन्ग, बट उन्हें लगता है मैं रिपोर्टिंग अच्छी करता हूँ। तो मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि मैं एआई को क्या करूँ, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ईयरली डैशबोर्ड बना दिया, जो उनका पिछला कोई जो भी सर्विसेज मैनेजर था उसने नहीं किया था। उनको बताया कि 2024 में, आप जब मैंने ज्वाइन किया था तो आपका सर्विस डेस्क यहाँ खड़ा था, 2023 मैंने ज्वाइन किया था मैम, 2024 में मेरे आने के बाद में ये हुआ, आपके ये केपीआईज बढ़े, और उनको ये भी दे दिया कि अगले 2 साल का प्लान क्या है। पहले आईटी हेल्प डेस्क था, वहां से सब सब सर्विस डेस्क बना। अब आईसेट की टीम के लिए मिशन ये है नेक्स्ट ईयर के लिए कि टेक्निकल सर्विस डेस्क बनना है, देन यू हैव टू बी ऑटोमेटेड सर्विस डेस्क। तो आई होप कि आई मेड इट स्लाइटली क्लियर कि कहाँ से कैसे क्या आया। मुझे सर्विस डेस्क के अंदर, सर्विस मैनेजमेंट के अंदर ही एआई को इतना इंड्यूस कर देना है कि 50% एफिशिएंसी आ जाए, तो बंदे भी कम चाहिए। बट बंदे जो कम चाहिए, वो बंदों को नए स्किल में डालने का है। यू लर्न मोर। आई मीन नाउ, अगर आप लर्न करोगे फाइन, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो somebody who can do the same job within 20 minutes where you are working for a whole day, company will not hire you. I mean, sorry, it's not negative, but आपको upskill होना ही पड़ेगा। तो go back to study again, ये time है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू अभिनीत। और जो आपने बात कही ना कि भले ही शायद उस समय जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स, हो सकता है शायद कई ऐसी रातें होंगी जहाँ पे वो भूखे भी सोए होंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए किया, एंड एज अ प्राउड सन, एक छोटे से शहर से, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का आज यूके में है, इतनी बड़ी टॉप कंपनीज के साथ काम कर रहा है, लीडरशिप रोल्स में है, और कितने लोगों को न जाने गाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आई एम वेरी श्योर कि आज उनको जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी मिलती होगी ना अभिनीत आपको देख के, दैट इज़ अनबिलीवेबल। हर बच्चे का एक सपना होता है कि अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना है, और ये चीज़ आपने कर दिखाई है। तो मुझे लगता है ये लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस है जो आपने अभी अचीव कर लिया है। और रही बात आगे की चीज़ों के लिए, तो आई एम वेरी श्योर कि जैसा आपने कहा कि मुझे अपनी टीम को मोटिवेट करना है, इट्स अ टाइम कि हम वापस जाएं अपनी रूट्स की ओर, हम वापस से लर्न करें, क्योंकि जब भी नए चेंजेस आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, तभी हम अपनी जगह में सिक्योर रह पाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे आपकी पर्सनैलिटी में लगती है अग्रीम, कि जिस सेक्टर में आप हैं, आईटी सर्विस डेस्क आप पूरा हैंडल करते हैं, उसके अंदर एआई को और पावरफुल बनाना, लोगों की इफिशियंसी बढ़ाना, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो इस मिशन के साथ आप काम कर रहे हो, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल अभिनीत। एंड जस्ट लेट अस नो अबाउट इट अभिनीत, कि इतने साल आपने काम किया, और जैसा आपने बताया कि अब जब हम लोग सीखना चालू करते हैं अभिनीत, तो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बोला कि भले मैं कितनी लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में रहा हूँ, लेकिन हमारा जो जुड़ाव होता है, जो बचपन से भाषा हम सीखते हैं, हिंदी, जैसे हम इंडियंस लोग हैं, हमको पहली जो चीज़ हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं कि हिंदी में कैसे बात करना है। पहला वर्ड बच्चा मम्मी पापा बोलना सीखता है। तो हम उस जगह से आने वाले भारतीय लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसे द स्किल के बारे में पता चला, और लैंग्वेज जो चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभिनीत जो हमारे देश में ना बहुत छोटी जगह से आते हैं, आप खुद वहाँ से होके यहाँ तक पहुँचे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन लोग के लिए प्लीज़ ये गाइड करिए कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है अगर सीखने की इच्छा मन में हो तो। मैम, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता है। लैंग्वेज
अ, हम कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अच्छी बात ये है कि इंडिया में भले ही हम कैसे भी सीखें या एज़ अ सब्जेक्ट लें, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हम परफेक्ट नहीं है, बट हमें पता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो हमें वहाँ से आता है। और छोटे शहरों में तो कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो कम से कम हिंदी मीडियम भी है तो इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट है। तो वहाँ से आदमी के लिए एलियन नहीं है इंग्लिश। वो यस। जानते हैं कि कुछ-कुछ तो है। उसके बाद फिर अ, अगर ऐसा ही होता, नॉलेज, अभी मेरी टीम में बहुत सारे, आई मीन देयर आर मेनी पीपल हू आर ब्रिटिश, बट दे आर नॉट मैनेजिंग। A यस। person who's not very good as comparing to them in English is managing them. So इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मेरा बिल्कुल। मैनेजर बोल रहा था कि आई हर्ड मेनी थिंग अबाउट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। The people are interested and keen to know about it. I don't know what is it. So I said, there is one person standing in front of you who is made in India, manufactured in India, processed in India. Now it is here. I'm the great example for made in India. आपको कहाँ जाना है? क्या ही ट्रू। पता करना है? एब्सोल्युटली तो ट्रू। इंग्लिश मैम कभी भी बैरियर नहीं है। इवन आफ्टर कोविड जो चेंज हुए हैं मैम, वो चेंज हुआ अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर फोन है, आपके पास इंटरनेट है। कोविड के बाद सब कुछ चेंज हो गया मैम। अब आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब में एक नॉर्मल अकाउंट बनाइए। आपको सिर्फ रील्स नहीं देखनी है, आपको देखना है कि प्रोडक्टिव वीडियोस कौन से हैं। लोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ मिशन चाहिए, आपको सिर्फ वो चाहिए जो फोकस, और मुझे करना क्या है ये पता होना चाहिए। तो उस लैंग्वेज, अब तो यूट्यूब में भी अगर इंग्लिश है तो थैंक्स टू एआई आप चेंज कर सकते हो। आपको जिस ट्रू। लैंग्वेज में समझ में आता है आप उसमें बात करिए, आप संस्कृत में कर लीजिए, हमें जो भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो आजकल लैंग्वेज बैरियर नहीं है मैम। एग्जैक्टली exactly. और यही रीज़न था कि आप फोकस थे और आपकी भी यूट्यूब में डेफिनेटली आपने चीज़ें सर्च की, लर्न करना स्टार्ट किया, तब आपको पता चला और नए थॉट्स आए एआई डेटा साइंस के बारे में। सो विनीत, आई स्किल के बारे में कैसे पता चला आपको? मैम आई स्केल के बारे में ऐसे पता चला कि पहले, एज आई सेड, कि मैं जब एक, आई डोंट नो, आई हैव अ गुड हैबिट और बैड हैबिट। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड आई गो ओके। टू स्लीप 9 o'clock इन द नाइट। आई कांट स्टे, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन स्टे टिल 11। तो 9 साढ़े 9 बजे मैं सोने जाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि 7 में से 5 से 6 दिन मैं 3:30 बजे उठूँ सुबह। और मेरा ये मानना है, आई बिलीव कि बहुत सारी चिंताएं हैं देखने देने के लिए, फैमिली है, ऑफिस है, तो आपको 2 घंटे आपको अपने आप को देने चाहिए। वेरी मुझे ऐसा ट्रू। लगता है। और और वो मैं कैसे दे पाता हूँ मैम? मैं सुबह उठता हूँ, मैं जिम चला जाता हूँ, और जिम में जाके जब मैं ट्रेड मिल पे रहता हूँ, तो आपको म्यूजिक तो चाहिए ना, आपको यू हैव टू फोकस, राइट? तो यस। वहां पे मैं म्यूजिक नहीं सुन के, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में। ट्रेड बिल चल रही है, फोन सामने है, तो वहां पे मैं सुन रहा हूँ कि क्या क्या है। तो वहां पे ऐसे ही आई स्केल के फ्री वीडियोस वहां पे देखे सबसे पहले। देखने के बाद, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कुछ देखने का, माइंड को पता नहीं चलता कि 30 मिनट्स हो गए, 35 मिनट्स हो गए, तो आप उसमें चले जाते हो। तो वहां से रेफरेंस मिला। रेफरेंस मिलने के बाद फिर मैं वेबसाइट पे गया, मैंने वीडियोस देखे। टू बी फ्रैंक विद यू मैम, आपकी वीडियो और निशांत सर की वीडियो देख के मैंने कई सारे डैशबोर्ड बनाए थे, जो फ्री वीडियो से ही बनाए थे। बट कई बार फिर ऐसा हुआ कि स्टक हो गया मैं, यहाँ से क्या, डैक्स में कभी कभी फॉर्मूला नहीं मिलता, रिफाइन कर रहे हैं डेटा तो नहीं मिलता। क्योंकि एक होता है, आप बस से जा रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा पे करके अगर आप एरोप्लेन से उसी जगह पे आधे घंटे में चले जाते हो। तो वही चीज आया, फिर मैं वेबसाइट पे गया, मुझे लगा कोर्स, मैम आपने तरीका आपका और सर का मैंने देखा था, मुझे पसंद आया, आई विल रोल इट, और वहां से ही पता चला मैम। तो यही है बस। तो यही से ही पता चला, ग्रेट अभिनीत। थैंक्स टू यूट्यूब।
डेफिनेटली एंड द गुड पार्ट इज़ दैट कि हमें पता कहीं से चला हो, हमने जो जर्नी को स्टार्ट किया है उसमें कॉन्स्टेंटली सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी जैसा आपने बोला कि मैं 2 घंटे समय निकालता हूँ, ठीक इसी तरीके से मैं और निशान सर, हम दोनों भाई बहन भी समय निकालते हैं कि नया जो चीज़ डेवलप हो रहा है। आज की डेट में कोई नहीं बोल सकता हाँ मुझे सब कुछ आता है, हम सबको सीखना पड़ता है नई चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो हम भी डेफिनेटली आप ही की तरह बिल्कुल टाइम निकाल के नई चीज़ें लर्न करते हैं, और हम हर कोई ना स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट बन के ही जीना चाहिए, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर हमारे अंदर ये ईगो आ गया कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, देन थिंग्स विल नॉट वर्क। सो डेफिनेटली अग्री। बेसिकली अभिनीत, आपसे काफ़ी कुछ लर्नर्स जो ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि किसी ना किसी दिन हम भी कोई अच्छी कंट्री में जाके लीडरशिप जैसी पोजीशंस पे जाएंगे, बहुत लोगों की मीटिंग्स लेंगे। तो आप उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हो, जो इतनी चीज़ों को फाइट करके इस मुकाम तक आप पहुँचे हो। तो अभिनीत, जितने स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी जस्ट कॉलेज में हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान के चलिए अगर आप वापस आज 25 साल की उम्र में होते, तो क्या चीज़ें आप ऑप्ट करते अपने करियर के लिए? मैम, जो भी अभी कॉलेज पे है और प्लानिंग टू कम टू द इंडस्ट्री, तो सबसे आज सुबह ही मैं एक पिछले 1 हफ्तों में मैंने कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस सुनने शुरू करे। अच्छा, मेरी एक और बहुत गंदी आदत है मैम। जैसे मैं फ्री होता हूँ ना, तो जैसे मेरी वाइफ है तो वो वीडियोस देखती है, कोई सीरियल्स देखती है, बट मेरी आदत है तो मेरे को न्यूज़ ही देखता है और कुछ मुझे उसी में इंटरेस्ट आता है। ये तो बहुत मेरी अच्छी वो उसको आदत है सोचती है आपकी। कभी-कभी उसको सोचती है पागल है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, एक न्यूज़ आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो उसी न्यूज़ को बीबीसी का क्या पर्सपेक्टिव है और सीएनएन का क्या पर्सपेक्टिव है, आज तक का क्या पर्सपेक्टिव है, सेम न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है तो हर जगह आ रही होगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आएगी। तो वहाँ से स्टार्ट करके ना, तो मैंने उसके बाद मैंने स्पिरिचुअल वीडियोज़ अभी कुछ दिनों पहले देखने शुरू करे। उसमें एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब सक्सेस मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फोकस करना है अपने फेलियर पे। ट्रू। क्योंकि अगर आप किसी समय पे फेल होते हो तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि ये मिस हो गया मेरे से, बट हो सकता है कि ये इसलिए मिस हो गया क्योंकि समथिंग बिग वेटिंग फॉर मी। तो मुझे मेहनत में कम नहीं करना है। मुझे मुझे हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके तैयार रहना है, क्योंकि जो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आएगी वो बता के नहीं आएगी। तो वो मुझे ग्रैब करनी है, वो कब आएगी। लेकिन अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैम, मैंने किसी तो इंग्लिश स्कूल में जब मैं छोटा था तो एडमिशन दिया था, मेरा नहीं हुआ था। और कहीं तो कुछ और किसी उसमें कॉम्पिटिशन में, क्योंकि छोटे शहर में बोलते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में, इस गवर्नमेंट जॉब में इसमें कर ले, तो नहीं हुआ था। हो गया होता तो शायद मैं वहीं होता, नहीं हुआ। बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, राइट? तो घबराना नहीं है अगर फेलियर है। सक्सेस में तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फेलियर में आपको हिम्मत नहीं हारनी। वो हो सकता है वो छोटी चीज हो जो आपका इंतजार करे, बट समथिंग इज वेटिंग फॉर यू। तो यही मेन मेरा वो है। और अगर मैं शायद, इफ आई कुड हैव बीन लाइक 25 years फ्रॉम दिस टाइम, मैम, मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम पर जो एआई एआई इज अ वेरी बिग, राइट? उसके अंदर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और बहुत बहुत कुछ, इट्स अ बिग सी। लोगों को लगता है एआई का मतलब चैट जीपीटी और को पायलट। टर्न्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर व्हिच यू कैन यूज। एआई सिर्फ डीप सीक और को पायलट और जेमिनाई और उसके तक ही सीमित नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप एआई में इंट्रोड्यूस अगर नहीं हो रहे तो आप गलती कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि वो हर जगह घुस रहा है। कहाँ-कहाँ पे नहीं घुस रहा? बहुत ही कम सेक्टर हैं, जैसे खाना, एआई खान राइट? ट्रू। और
प्लम्बिंग प्लम्बिंग हो गया या कारपेंटर्स हो गए। हम तो आई वाज थिंकिंग कि नया कुछ टाइम के बाद, ज्यादा दूर नहीं है, जब बाबर किसी कंट्री में बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 12 पाउंड देने पड़ते हैं सिर्फ बाल कटाने के। तो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि बाबर कहीं कंट्री में बैठा है और रोबोट बैठा हुआ है और बाबर कट कर रहा है, क्योंकि रोबोट ऐसे ऑपरेशंस भी तो हो रहे हैं ना, या अभी It may नहीं हो रहे तो happen. होंगे। Yes. इट मे हैपन। सो इट्स ऑल अबाउट इट। और अगर आप एआई में अपने आप को ट्रेन करते हो तो यू कैन डू मल्टीपल डोमेन्स इन द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, पहले लोग सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई बहुत करते थे, Hmm. फिर क्लाउड आ गया। एज्यूर में तो आपको एसएस एंड पास एंड एवरीथिंग, आपको तो नेटवर्क की डिवाइस पड़ी वैसे ही मिलती है ना, आपको सर्विस ऐड करना है। तो अब जब एआई आ जाएगा तो आपको नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप और थोड़ा बढ़ोगे तो आपको कोडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विद इन एन आईटी आपने 4 से 5 डोमेन, अगर आपको एआई आता है कि आपको सिर्फ राइट टूल पकड़ना है और राइट टेक्निकल थिंग्स पकड़नी है, एंड देन यू कैन टारगेट मल्टीपल डोमेन्स जस्ट बाय लर्निंग एआई। Yeah, that's true. And whatever you said, na Abhineet, like always believe in God's plan because it will have more potential than what you are thinking. So I also believe the same. And like whatever be the work we are doing, like अगर छोटा से छोटा काम भी क्यों ना हो ना, अगर उसमें बहुत ईमानदारी के साथ उस इंसान कोई भी अपने छोटे काम को भी करे, तो मुझे लगता है कि वो एक दिन अपने आप बड़ा ज़रूर बन जाता है। और यही हमारा भी ऑब्जेक्टिव था ताई स्किल स्टार्ट करने के बाद, when we were indulged in many companies MNCs के साथ काम करना, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक टू द थिंग्स, क्योंकि अब AI सिखाने वालों की भी नीड है मार्केट में। जब तक हम अपने टैलेंट वर्कफोर्स को AI नहीं सिखाएंगे, कैसे हम उनका एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं आगे। सो अभिनीत, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड लाइक जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक हो, बिकॉज ऑनेस्टी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक हो आई स्किल के कोर्सेज के रिगार्डिंग अबाउट AI, अबाउट आवर क्लासेस, यू कैन शेयर दैट इज वेल। मैम, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अपनी लैंग्वेज में अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। और दिस इज समथिंग विच इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैम, जैसे मैं आई एम अ फैमिली मैन, राइट, मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, सबको ही टाइम देना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो कोर्स की जो स्पीड है, वो बहुत, मुझे लगता है कि आई माइट बी बॉटम 3 बॉटम 4, क्योंकि जो जो मेरी बहुत छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मुझे बहुत सारी चीजों को। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरा जो कोर्स का लेंथ था वो एक्सपायर कर गया, बट मैंने एक बार मैसेज किया, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा और मैंने अपना जेन्युइन रीजन बताया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, 6 मंथ्स के लिए उन्होंने रिन्यू कर दिया। तो आई डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा। आई मीन, इट्स नॉट अबाउट पे, इट्स अबाउट दे अंडरस्टैंड योर इश्यूज। जब लोगों को अपना जेन्युइन चीजें हमने बताई, जो भी आपका सपोर्ट ग्रुप है, दे वर वेरी अप्रोचेबल। और अगर मैंने शाम को भी मैसेज किया होगा, जो कि आपका रात, मतलब इंडिया हमारा रात है, तो उसमें नेक्स्ट डे उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डाउट क्लास होती हैं हर वीक, तो वहाँ पे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आप उनको आपको ईमेल कर सकते हो मैम। तो ये बहुत ये चीज़ नहीं मिलती है। मैंने कोर्स एड्यूरेका से भी किया हुआ है, मैंने कोर्स अलग-अलग जगह से भी किया हुआ, बट इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द कोर्स एंड योर जॉब इज़ डन। You make sure that your job will complete when the person get a job or an offer. एग्जैक्टली। That is important. That is important. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभिनीत, क्योंकि आप तभी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो जब सच में वो इतना केपेबल बने कि वो उसके जो डिज़ायर्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसको वो फुलफिल कर पाए। और यही ऑब्जेक्टिव, और इसी के साथ आप भी आज जिस पोजीशन में हैं, कितने सारे लोग होंगे जो एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए होंगे आपकी कंपनी और आप उनको एज अ बॉस मिले होंगे। तो डेफिनेटली आई कैन से दैट यू विल बी द बेस्ट बॉस। लाइक जिस किसी को भी अगर एज अ फ्रेशर वो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए अगर उसको एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मेंटोर मिल जाए ना, तो उसके लिए बहुत लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है कॉर्पोरेट के अंदर। सो डेफिनेटली अभिनीत, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई एम सो हैप्पी कि
आप इतनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, लर्न करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे और आप यहाँ पे रुकने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप इससे भी और ज़्यादा आगे जाएँगे और भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको आप मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। सो माय बेस्ट विशेज़ आर देयर विथ यू। और मैं, निशांत सर, हम सब आपके साथ, पूरी द iSkill की टीम है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपको हमारी तरफ से कुछ हेल्प मिले, डेफिनेटली बिना सोचे आप बस एक टेक्स्ट, एक कॉल कर दीजिए। हम डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। That's fine, मैम, थैंक यू सो वेरी मच। सिर्फ एक लास्ट चीज मुझे सारे लोगों को बोलनी थी। तो जैसे मैंने 4-5 टीमों के साथ काम किया, तो होता क्या है, सामने तो टीम मेंबर्स बुरा कभी कभी कहते नहीं है, कुछ कुछ होते हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो नहीं बिल्कुल। बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी या टीम छोड़ी, तो मैं उन सारे बच्चों का ग्रुप बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एन आई टी एन या एक्स कनूपियन या फिर एक्स सपोर्ट सर्विस डेस्क, तो वो सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, और वहां पे आपका राइट फीडबैक पता चलता है। और अच्छी बात ये लगती है कि सारे सेम डोमेन में है, क्योंकि डोमेन ही सेम है, इट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि दो मेरी टीम तीन को क्लब कर दिया, तो एक ही डोमेन के अलग अलग कंपनी में काम करने वाले बच्चे एक ही ग्रुप पर आ गए। तो कोई फॉर एग्जांपल किसी का क्वेश्चन आता है कभी, इट्स लाइक नॉलेज बेस्ड लाइब्रेरी विद इन द माइंड, कि जेएमएल प्रोसेस है, ज्वाइन मूवर लीवर। तो मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, कोई बंदा ज्वाइन करता है तो लीवर में अकाउंट कब डिसेबल करे, इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग। तो यस। वहां पे क्या होता है, चार लोग सेम डोमेन में ये बता, यार मेरी कंपनी में तो ये होता है, बट ये होता है। तो पीपल आर थैंकफुल टू यू कि, और यू अर्न रिस्पेक्ट, क्योंकि आपने सबको, किसी की कंपनी में ओपनिंग आई है, राइट? तो पीपल पुट ट्रू। इट लाइक, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, इज देयर एनी, या यार, तो उनको क्या पता है, अच्छा मैं, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया है। समटाइम पीपल आस्क, सर ये वाला बंदे को क्या हम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, उसने अच्छा कहा। सो दिस इज द another वे यू आर अर्निंग रिस्पेक्ट, यू आर सपोर्टिंग पीपल बाय गाइडिंग। समटाइम हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, बट कोई और टीम का बंदा मेरा किसी और कंपनी का वहां पे बैठा हुआ है और वो रिप्लाई कर रहा दैट्स फिनोमिनल अभिनीत। और यही जो कामनेस है, यही जो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना, उनकी हेल्प करना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे इतने मायने नहीं रखते यार, पैसे हर कोई कमा लेता है, एवरीबडी हैज़ दैट पोटेंशियल टू अर्न दैट मनी, बट इट टेक्स द करेज टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, एंड दैट यू आर डूइंग। तो यही चीज़ हमें एज ए इंडियन प्राउड फील कराती है कि हमारे यहाँ का एक अभिनीत, यूपी की छोटे से गांव से आने वाला, आज यूके में इतनी अच्छी चीज़ें कर रहा है, और ना सिर्फ लीडरशिप पोजीशन में है वो, बल्कि लीडरशिप को अपना रहा है और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। दैट मेक्स अस प्राउड। मी एज एन एजुकेटर, इट लाइक आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, एंड डेफिनेटली यू आर द वन जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होगा। सो थैंक यू सो मच अभिनीत, एंड माई बेस्ट विशेज़ आर देयर विथ ऑलवेज फॉर यू एंड योर फैमिली टू। थैंक यू सो मच। आज आपने इतना समय निकाला, अपनी इतनी चीज़ें शेयर की। मुझे पूरा विश्वास है जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा वो ज़रूर आपसे बहुत कुछ सीख के जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन अभिनीत। Thank you, ma'am. I mean, thanks for having me. And anybody wanted to contact me, I'm happy to be contacted on LinkedIn profile. Yeah, I mean, if I'm able to guide someone, it's something giving back to the society.